زہران ممدانی نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر منتخب۔ زہران ممدانی نے امریکہ میں روایتی سیاست کی اجارہ داری توڑ دی، صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلون مسک کو دھول چٹا دی۔ زہران کو 50.4 اور اینڈریو کومو کو 41.6% ووٹ ملے۔ ممدانی کو ہر رنگ و مذہب کے لوگوں نے ووٹ دیا۔ 1 جنوری کو میئر کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ نیو یارک کا میئر بننا کسی چھوٹے ملک کے وزیر اعظم بننے جیسا ہے۔ امریکی جغرافیے میں نیو یارک کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے۔ زہران ممدانی کے کرشمے کی کہانی۔ زہران ممدانی طاقتور اسرائیلی لابی سے ٹکرائے، صدر ٹرمپ، ایلون مسک اور کئی ارب پتیوں کی مخالفت کے باوجود میئر بنے۔ ممدانی کی مہم امریکی بلدیاتی تاریخ کی سب سے منظم گراس روٹ لیول کیمپین قرار۔ زہران ممدانی کی ٹیم نے 14 لاکھ رضاکاروں کا نیٹ ورک بنایا۔ ممدانی کے رضاکاروں نے ہر دروازے پر دستک دی اور پیغام پہنچایا۔ نیو یارک میں کرایہ منجمد کرو اور فری بس کے نعرے گونجے۔ ممدانی نے روایتی میڈیا کے بجائے سوشل میڈیا کمیونٹی اجلاسوں پر توجہ دی۔ ممدانی نے نعروں کے بجائے جامع معاشی ایجنڈا دیا۔ 34 سالہ زہران ممدانی نیو یارک کے کم عمر ترین میئر۔ زہران ممدانی ترقی پسند حلقوں میں آئیکن کے طور پر ابھرے۔ زہران ممدانی کے والد پروفیسر، والدہ فلم ساز ہیں۔ 1991 میں یوگنڈا کے دارالحکومت کمپالا میں پیدا ہوئے۔ زہران 7 سال کی عمر میں فیملی کے ساتھ نیو یارک منتقل ہوئے۔ زہران ممدانی فلسطینیوں کے حقوق کے لیے سرگرم رہے، غریب خاندانوں کی جبری بے دخلی سے بچانے کے لیے مدد کی۔ 2020 میں نیو یارک اسٹیٹ اسمبلی کا انتخاب لڑا۔ 2021 میں ریاستی اسمبلی میں برو آف کوئنز کی نمائندگی کی۔ زہران ممدانی نے بطور گلوکار بھی قسمت آزمائی۔ زہران ممدانی کی پہلے ہی تقریر میں ٹرمپ کو للکار۔ ٹرمپ جیسے ارب پتی ٹیکس بچاتے تھے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ کرپشن کے کلچر کا خاتمہ کروں گا۔ اس کلچر نے ارب پتیوں کو ٹیکس سے بچایا۔ اب طاقت امیروں کے ہاتھ میں نہیں، اب نیو یارک تارکین کی قیادت میں آگے بڑھے گا۔ نیو یارک میں اسلاموفوبیا کی کوئی گنجائش نہیں۔ مجھے معلوم ہے ٹرمپ میری تقریر دیکھ رہے ہیں۔ تقریر کی آواز بڑھائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا دھچکا۔ امریکی ریاست نیو جرسی اور ورجینیا میں ڈیموکریٹس گورنر منتخب۔ ایبیگیل ورجینیا کی پہلی خاتون گورنر بن گئیں۔ مائیکی شیرل ریاست نیو جرسی کی گورنر منتخب۔ ورجینیا میں غزالہ ہاشمی نائب گورنر بن گئیں۔ بھارتی نژاد غزالہ ہاشمی پہلی مسلم نائب گورنر بنی۔ زہران ممدانی کیوں جیتے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے 2 بہانے، کہتے ہیں ایک یہ کہ بیلٹ پیپر پر میری تصویر نہیں تھی، دوسری وجہ شٹ ڈاؤن ہے۔ شٹ ڈاؤن سے سٹاک مارکیٹیں متاثر ہو رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈارک ووٹنگ اور ووٹنگ مشینوں کے خاتمے کا بھی اشارہ دے دیا۔ 27ویں ترمیم 14 نومبر تک منظور کرانے کا فیصلہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی زیر صدارت ہاؤس بزنس مشاورتی کمیٹی کا اجلاس۔ آئینی ترمیم پہلے سینٹ سے منظور کرائی جائے گی۔ اجلاس میں پی ٹی آئی کے سوا تمام جماعتیں شریک۔ وزیر اعظم نے ترمیم پر اتفاق رائے کا ٹاسک اسپیکر کو دیا تھا۔ مولانا صاحب ایک بڑے زیرت اور بڑے سالڈ سیاستدان ہیں۔ وہ تو ان کی پارٹی اور انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس میں چیزیں ہیں، لیکن مثبت بات یہ ہے کہ وہ بھی اس چیز کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، اس کے اندر چیزوں کے اندر کوئی سوال ہوگا، کوئی جواب ہوگا، تو یہ مثبت بات اس کے اندر یہ ہے کہ وہ بھی ان سب چیزوں کو دیکھیں گے۔ آپ لوگ 27ویں کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں، میں 28ویں کی تیاری پہ کھڑا ہوں۔ پاکستان کے لیے چیزیں یاد آتی جائیں گی، ویسے ترمیم آتی جائے گی، ترقی ہوتی جائے گی۔ آپ کو بھی اگر کسی چیز کے لیے چاہیے تو ہم آپ کو فراہم کر دیں گے کسی فورم میں۔ نمبر کی بات نہیں ہوتی مولانا صاحب کے ساتھ، پاکستان کی بقا، سلامتی اور ترقی، کامیابی کی بات ہے۔ مولانا صاحب کا ہونا بہت ضروری ہے پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے۔ ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے اور وہ رول رہنا چاہیے اور رہے گا۔ گورنمنٹ کا کام ہے، گورنمنٹ کی تجاویز ہے، گورنمنٹ کا یہ 27 امینڈمنٹ ہے، اور گورنمنٹ نیچرلی کانٹیکٹ کرے گی، آج کل میں آئے گی ان کے پاس۔ 27ویں ترمیم کے لیے نمبر زیادہ ہی ہیں۔ فیصل واوڈا کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا مولانا سے ترمیم کی شقوں پر بات ہوئی، ملک کی بقا کے لیے مولانا کا ساتھ ضروری ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ترمیم کا جائزہ لیں گے۔ آئین ایک مقدس دستاویز ضرور ہے، لیکن صحیفہ آسمانی نہیں ہے۔
लिविंग डॉक्यूमेंट है। उसमें अगर तरामीम अगर 26 हुई और 26 से पहले 25 हुई थी तो 26 के बाद 27वीं अगर आइनी तरमीम की ज़रूरत है तो इस पर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी और हैरानी होनी नहीं चाहिए। इस हवाले से और भी बहुत सारे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इक़दामात उसके जहन में हैं। हुकूमत से बराह रास्त जब गुफ्तगू की तो हमने अपना वो पूरा हमने आपको सिर्फ आज एक खदोखाल बताने के लिए कि हुकूमत ने जो कुछ हमें बताया है, जो हमें समझ में आया है, वो हमने आप तक पेश किया है। इस साल ने तकाज़ा पैदा किया कि इसको कौमी हम आहंगी के साथ और मजबूत दिफा के साथ और दिफा के जदीद तकाज़ों के साथ हम आहंग करने की ज़रूरत है। आइन आसमानी सहीफ़ा नहीं, इसमें तरमीम की जा सकती है। आइनी तरमीम पर हैरानी और परेशानी नहीं होनी चाहिए। MQM रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा 27वीं आइनी तरमीम पर खुद हुकूमत से राब्ता किया। कुछ रोज़ पहले हमारे वफ्द ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी। तरमीम आइन की बालादस्ती के लिए की जा रही है। सत्ताईसवीं आइनी तरमीम आइन की रूह की मुखालिफ है। इस तरमीम से कौम को मजीद तकसीम ना करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की तनकीद। कहा सुप्रीम कोर्ट के पास 56,000 केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। कहाँ गए वो सीनियर जजेस जिन्होंने ये केसेस निपटाने थे। अमीर कतर ने पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदे को खुशाइंद और बरवक्त करार दे दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने अमीर कतर को हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। अमीर कतर ने कहा कि कतर को पाकिस्तान और इसकी कामयाबियों पर फ़ख्र है। अमीर कतर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर कल इस्तंबुल में होगा। पाकिस्तान का आला सिफारती और अस्करी सतह का वक्त मुज़ाकरात में हिस्सा लेगा। अफगानिस्तान में दहशत ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाइयों पर तहरीरी ज़मानत तलब की जाएगी। तहरीरी ज़मानत दोहा में अमरीका और अफगान तालिबान मुआहदे की तर्ज पर हो सकती है। SOEs which are now at the Privatization Commission. PIA ki privatization, we are very hopeful that inshallah before the year is out, we will see that through the finishing line. Right sizing of the federal government. 39 ministries and more than 400 attached departments, and about 70% of the work is done in terms of merging the ministries, in terms of some of the departments which are being closed. हुकूमत ने 24 सरकारी इदारे बेचने का फैसला किया है। PIA की निजकारी इस साल से पहले मुकम्मल हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में फ्यूचर समिट से खिताब। कहा गैर ज़रूरी इदारे ख़त्म किए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत में राइट साइजिंग अमल के तहत 39 वजारतों को ज़म किया जा रहा है। पैदावार पर मबनी मुआशी तरक्की ही पायदार तरक्की का वाहिद रास्ता है। Today, New York has elected a 34-year-old Muslim mayor. You can't be redirecting or course correcting any more than this. A few years ago, the city of Karachi also elected a young mayor. Pakistan too stands at an inflection point. To move forward, we must redefine our direction towards innovation-driven, inclusive and sustainable growth. We are already pursuing that transformation. We are modernizing our industrial and logistic space, developing IT parks, establishing technology zones through education, digital literacy and skill development. Together, let us define direction and design the future. कराची की तब्दीली न्यूयॉर्क तक पहुंच गई। न्यूयॉर्क ने नया नौजवान मेयर चुना। कराची ने भी नौजवान मेयर चुना था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फ्यूचर समिट से खिताब। कहा कराची पाकिस्तान की मुआशी शहरक है। हम नौजवानों को जदीद तालीम और महारतों से आरास्ता करके मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए तैयार कर रहे हैं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले होशियार मोटरसाइकिल सवार को हर खिलाफ वर्जी पर 2000 जुर्माना होगा। खिलाफ वर्जी पर 2 से 4 पॉइंट्स की कटौती भी की जाएगी। लाइसेंस भी मुअत्तल होंगे।
2000 सीसी से बड़ी गाड़ियों की ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना 20,000 वसूल किया जाएगा। 4 पॉइंट्स की कटौती होगी। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 15,000 तक जुर्माना होगा। वज़ीर आला ने ट्रैफिक जुर्माने बढ़ाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के लाहौर में नादरा और पासपोर्ट दफातर के दौरे, फहद टाउन और रीजनल डेरा गुर्जा सेंटर्स में शनाख्ती कार्ड्स और पासपोर्ट बनवाने के अमल का जायजा लिया। शहरियों से मुलाकात, मसाइल सुने। शहरी बोले अमले का रवैया अच्छा है, सही तर्ज की तरह रहनुमाई करते हैं। मोहसिन नकवी की व्हीलचेयर पर बुजुर्ग खातून की दस्तावेजात को बिला ताखीर प्रोसेस करने की हिदायत। कहा खुसूसी अफराद का प्रोटोकॉल के साथ काम निपटाया जाए। शहरियों को किसी किस्म की मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रो बस के किराए नहीं बढ़ेंगे, तजवीज़ मुस्तरद। लाहौर ता रावलपिंडी हाई स्पीड रेल के MOU की मंजूरी। कलअदम तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की बाज़ाब्ता तौसीक। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। मरियम नवाज़ ने कहा कि इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। कानून अब कागज़ नहीं, सड़कों पर भी नजर आएगा। काबीना ने एयर पंजाब कंपनी के क़याम की मंजूरी दे दी। सरकारी स्कूलों में टीचर्स इंटर्न की भर्ती की भी मंजूरी। दिफाई मईशत में अहम संग मील अबूर। पायमेट एक्सपो में दुनिया भर के मंदूबीन की शिरकत। नुमाइश में पाकिस्तान नेवी की दिफाई सलाहियत बढ़ाने के लिए इग़राक़ मिसाइल मुतारिफ। स्टिंगरे कंपनी ने WS गन मुतारिफ करा दी। रिमोट कंट्रोल जदीद गन नेवी के जहाज़ों पर नस्ब की जा सकती है। गन की रेंज 30 से 40 मील तक है। इलेक्ट्रॉनिक वार सिस्टम जैमर का काम करता है, जो मार्का हक में भी इस्तेमाल हुआ। जदीद टेक्नोलॉजी से लेट रोबोट भी तैयार कर लिया गया। कराची से रानों की मरहलावार गिलगित बल्तिस्तान मुंतकली। रीच रानों को कराची से C-130 तैयारे के जरिए इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। रीच रानों को अगले मरहले में गिलगित मुंतकिल किया जाएगा। इस्लामाबाद में रानों को रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा गया। अमरीकी रियासत कैंटकी के एयरपोर्ट पर कार्गो तैयारा गिरकर तबाह। हादसे के नतीजे में कई इमारतों में आग लग गई। मुतअद्दिद अफराद जख्मी। अमरीकी नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का आखिरी रोज गुरुद्वारा जन्मस्थान में दुआया तकरीब का इनकाद। दुनिया भर से 2600 से ज़ायद सिख यात्रियों की मजहबी रसूमात की अदायगी में शिरकत। दुआया तकरीब में वफाकी और सूबाई वज़रा, डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब की भी खुसूसी शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिख बरादरी को दिली मुबारकबाद। कहा बाबा गुरु नानक मजहबी रवादारी और बैनुल मज़हब हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल थे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान ने पहले वनडे में जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से शिकस्त दी थी। जनूबी अफ्रीका की टीम की प्रैक्टिस कौमी टीम ने आराम किया। जनूबी पंजाब के सहरा में रफ्तार का टकराव कल से होगा। थल जीप रैली की तैयारियां मुकम्मल, ट्रैक तैयार, कैंप लग गए। पहले रोज गाड़ियों की इंस्पेक्शन और टैगिंग मुकम्मल होगी। गाड़ियों की फिटनेस समेत दीगर मामला चेक किए जाएंगे। जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड 7 नवंबर को होगा। पाकिस्तान में साल के सबसे बड़े सुपर मून का शानदार नज़ारा। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में करोड़ों आंखों ने सुपर मून का नज़ारा किया। चांद अपने मिदार में गर्दिश करते हुए ज़मीन के करीब तरीन फासले पर पहुंचा। चांद का ज़मीन से फासला 2,21,817 मील रह गया। पाकिस्तान में सुपर मून शाम 6:19 पर सबसे ज़्यादा चमकदार नजर आया। चांद मामूल से 9.7% बड़ा और 16% ज़्यादा रोशन। रवां साल के तीसरे सुपर मून का नज़ारा दिसंबर में किया जा सकेगा। और फिल्म TV स्टेज की मारूफ अदाकारा ज़ेबा बख्तियार ने ज़िंदगी की 63 बहारें देख लीं। ज़ेबा बख्तियार ने भारतीय फिल्म हिना से फिल्मी करियर का आगाज़ किया। उनका बेटा आज़ान समी खान भी शौबे से मुंसलिक है।